Friends, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry classes. So students, my today's topic is applications and the uses of the lanthanides. So as we all know that what are the lanthanides? So lanthanides are our rare earth elements, and they are, when we study about the F block elements, so we know that F blocks are categorized into two types, 4F and the 5F. So just we can have a look what are our lanthanides elements. So you can see there lanthanides, there are our total 14 lanthanides elements after the lanthanum. Including lanthanum it will be 15. So cerium, praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium and lutetium. All these 14 are our lanthanides elements. So what are the main applications and the uses? So this video I have made in the two ways. Like first, what are the uses of our lanthanide elements, means अपना जो lanthanide elements हैं उनके क्या क्या uses होंगे, एंड लैंथेनाइड के जो कंपाउंड रहेंगे उनकी क्या एप्लीकेशंस है. सो इन द मेटलोथर्मिक रिएक्शंस, सो सम रिएक्शंस ड्यू टू द हाई reducing nature, lanthanides are used in the metallothermic reaction. So what is this high reducing nature? What is the meaning of reducing nature? Means they can easily give the electrons. So these are used in the metallothermic reactions. So cerium is the strongest reducing agent than our aluminium. So generally our cerium element is used in the metallothermic reactions, and some more which are used like niobium, zirconium, iron, cobalt, nickel, manganese, yttrium, tungsten, uranium, our boron, silicon, all these can also be obtained by the lanthanide metallothermic reactions. We can get them in the pure forms. So these metals are used as a deoxidizing agent, particularly in the manufacture of the copper and its alloy. So just you have to learn it. The lanthanide elements are mostly used in the metallothermic reactions. Next, what are the uses of mixed metals? So we know that we can form a very good alloys by the combination of our cerium 50%, lanthanum 25%, neodymium 5%, and a small quantity of other lanthanide metals, and also the iron and the calcium impurities. So this combination will give you the misch metal. It is very important. So the alloy of lanthanides are also known as the misch metals. The main constituent of the misch metals are cerium, lanthanum, neodymium, and a small quantity of our iron and the calcium. So what are the main uses of the misch metals? They are used for the production of different brands of steel, like heat resistant, stainless and instrumental steel. So as we know that many industries are depend upon the manufacture of the steel, different types of the steel for the different purpose, for the different industries. So मिक्स मेटल का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होता है? हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग में, different types of the steel. Next, मिक्स metals are also scavengers for the oxygen and sulfur in the metallurgy. तो जब हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे मेटलर्जी चलती है, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है और से, तो वहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, सल्फर रिलीज़ होती है. तो कैसे? तो ये मिक्स मेटल्स उनको एब्जॉर्ब भी करेंगे, और इनका उपयोग हमारे जेट इंजन्स बनाने में, जब हम मिक्स मेटल को मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करते हैं तो हम इसको जेट इंजन्स में यूज़ कर सकते हैं. और एंड व्हेन वी कंबाइन विद द लिटिल आयरन, इट कैन बी यूज्ड इन द लाइटर फ्लिंट्स. So these are the important uses of the misch metals. Next, we can see that lanthanum element is also used in making the gas lighters and cigarette lighters. So lanthanum element का जो use होता है वो lighters बनाने में होता है, gas lighters और cigarette lighters के लिए. Then सबसे important हमारे जो lanthanides है उसमें cerium होता है. It is used in making the sedative medicines. Means जो cerium के compounds होते हैं हमारे, बहुत सारा use होता है, जैसे कि उसे sedative medicines बनाते हैं maximum during the time of pregnancy. Also in the chronic diarrhea like hysteria, epilepsy, migraine and other diseases. तो ये जो medicines बनाने में हम सीरियम के ऑक्सोलेट्स का यूज़ करते हैं. मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा है, Ce2C2O4 होल थ्राइस 10H2O. एंड ये जो हमारा सीरियम होता है इसका उपयोग, इसके हम ग्लासेस फॉर द स्पेक्टिकल्स, मीन्स जो आप देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स आजकल चलते हैं, उनमें हम सीरियम का बहुत उपयोग करते हैं. सीरियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज ए मॉर्डेंट इन द डाइंग कॉटन. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. सीरियम कार्बाइड, नाइट्राइड्स आर यूज्ड एज ए आर्क इलेक्ट्रोड इन द फिलामेंट्स फॉर इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब.
मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के पर्पस से, इंडस्ट्रीज़ के पर्पस से हम अपना ये इलेक्ट्रिक आर्क और ये इनकैंडेसेंट लैम्प्स बनाते हैं, उसमें भी हम अपना सीरियम कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स का उपयोग करते हैं। तो सीरियम का एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है एंड सीरियम के जो हमारे ऑक्साइड्स होते हैं दे आर जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग द गैस मेंटल्स। सीरियम सॉल्ट्स का उपयोग कैटलिस्ट के रूप में भी किया जाता है। अभी आपने देखा था एक होता है मिश metal alloy and one of the important alloy of the lanthanide is also pyrophoric alloys। तो pyrophoric alloys क्या होते हैं? ये कॉम्बिनेशन होता है सीरियम 40%, 44% of the lanthanum and our 5% of the neodymium and iron and little aluminium, calcium, carbon and silicon. So it is also used in the preparation of the ignition devices such as treasure bullets and shells। So इसका मेन यूज़ कहाँ पर होता है? ignition devices बनाने में, for the treasure bullets and the shells। And the lanthanide elements are present in the warm superconductors। So we know that for the various purposes like we need superconductors। So generally the combination of your ytterbium, barium, copper, oxygen will make the warm superconductors। So हमारा जो lanthanide elements होते हैं उनका यूज़ हमारा superconductors बनाने में भी होता है। Then lanthanide shift reagents, this is very important। like when हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ यूरोपियम एंड प्रेसिडीमियम होते हैं वो हम जब कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे ये लैंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट के रूप में काम करते हैं। मीन्स जब आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिटेल्स पढ़ते हो तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन आती है शिफ्ट रिएजेंट। सो दे आर मेड बाय द lanthanide elements like our lanthanide ions like europium and the praseodymium। तो जब शिफ्ट रिएजेंट का नाम आएगा तो हमको कौन से दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट याद रखना है? यूरोपियम एंड अवर प्रेसोडीमियम। सो दीज आर important applications of our elements। Now we can just classify how we can use the compounds of the lanthanides। So this is a different category, like we can divide into two form, non-nuclear application and the nuclear applications, means other than the nuclear। So first comes the ceramic application। So cerium oxide, lanthanum oxide, neodymium oxides, praseodymium oxides all are used for decoloring the glass, for making transparent glasses block used in the nuclear technology and they are not affected by the radiations। means जब भी हमें कोई स्पेशल टाइप का ग्लास बनाना पड़ता है, मीन्स जो स्पेसिफिक पर्पस, मीन्स हमारा ट्रांसपेरेंट, जैसे आप देखते हो ना हॉस्पिटल्स हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं तो वहाँ पर हमको स्पेसिफिक ग्लास चाहिए ना, तो ये किसको यूज़ करेंगे हम? लैंथेनम के ऑक्साइड्स को, सीरियम ऑक्साइड, लैंथेनम ऑक्साइड्स, नियोडीमियम ऑक्साइड्स, प्रोसोडीमियम ऑक्साइड्स का उपयोग करके हम कोई भी ऐसा ग्लास बना सकते हैं जो कि उसके रेडिएशन से उसको कोई असर नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। आप भी देखते हो ना बहुत सारे, अभी आगे भी चल के आएगा कि हम हमारे फायर प्रूफ क्लॉथ्स बनाना है, वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाना है या कोई हार्मफुल रेडिएशन है। जैसे अभी हमने कोविड टाइम में देखा था कि हमको कुछ ऐसे चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है कि जहाँ पर कोई वायरस नहीं आए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द लैंथेनाइड्स हमारे क्या करेंगे, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करेंगे और उनको पास नहीं होने देते हैं, इसलिए इनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। लैंथेनाइड ऑक्साइड्स कैन एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन, सो दे आर यूज्ड एज एडिटिव्स इन द ग्लासेस फॉर स्पेशल पर्पसेस लाइक सन ग्लासेस। जैसे आप देखते हो सन ग्लासेस होता है तो उसमें नियोडीमियम ऑक्साइड यूज़ हो रहा है। स्पेशल टाइप ऑफ द गॉगल्स बनते हैं फॉर द ग्लास ब्लोइंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस, तो यहाँ पर भी हमारे नियोडीमियम ऑक्साइड्स और प्रेसिडोइमियम ऑक्साइड्स का यूज़ होता है। देन ग्लासेस प्रोटेक्टिंग आइज फ्रॉम द न्यूट्रॉन रेडिएशंस, मीन जो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते हैं तो उनकी आइज के लिए भी जो हमारे ग्लासेस बनेंगे उनमें हमारा गैडोलिनियम ऑक्साइड्स और समेरियम ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने कलर बताया हुआ है, जैसे सीरियम ऑक्साइड्स का जब मोर देन 1% सीरियम ऑक्साइड होगा तो आपको ब्राउनिश ग्लास मिलेंगे। देन नियोडीमियम एंड प्रेसिडीमियम ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन से हमको रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर के ग्लासेस हम बना सकते हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज़ द ceramic applications। Then next applications non-nuclear comes in the refactories। refactories क्या होती है? जहाँ पर जनरली आप देखते हो ना वो सभी चीज़ें सीमेंट से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता है ना,
तो यहाँ पर हमारा जो सीरियम सल्फाइड है वहाँ पर हमारा किसका उपयोग होता है, हाई टेम्परेचर वाले हमको वहाँ पर कंपाउंड्स चाहिए। तो सीरियम सल्फाइड एक स्पेशल टाइप्स ऑफ द क्रूसिबल बनाने में यूज़ होता है। और क्योंकि इधर हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल, बिकॉज मेटल्स का जब हम मीन्स जब मेटल्स को हम ओर में से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हाई टेम्परेचर सस्टेन करने वाले हमको क्रूसिबल्स चाहिए होते हैं। तो सीरियम सल्फाइड का उपयोग करके हम स्पेशल टाइप्स ऑफ द क्रूसिबल बनाते हैं जो कि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर को वेयर कर सकते हो। देन बोराइड्स, कार्बाइड्स, nitrites and also used in the refractories. Then next they are also used as abrasives. So lanthanide oxides are used as abrasive for polishing the glasses. एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स मीन्स कौन कौन से ऑक्साइड्स का मिक्सचर हम इसमें यूज़ करेंगे, सीरियम ऑक्साइड्स, लैंथेनम ऑक्साइड, नियोडीमियम ऑक्साइड, प्रोसोडियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, देन कैल्शियम ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। तो ये सभी का जब हम कॉम्बिनेशन बना के जो ऑक्साइड्स बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीराइड। और इस पॉलीराइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एब्रेसिव बनता है, मीन्स हम पॉलिशिंग कर सकते हैं ग्लासेस की। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है लैंथेनाइड कंपाउंड्स का। नेक्स्ट इज पेंट्स। सो वी नो दैट पेंट्स में बहुत सारे हमको कलर पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली लैंथेनाइड कंपाउंड्स का यूज़ होता है डाइज बनाने में, पेंट्स बनाने में, पोर्सलिन वगैरह जब पेंट करते हैं ना। तो जो सीरियम मॉलिबिडेट है उससे हमको येलो कलर मिलेगा। देन सीरियम टंगस्टेट से हमको ग्रीन ब्लू कलर मिलेगा। नियोडीमियम सॉल्ट से आपको रेड कलर मिलता है। तो जस्ट दे आर वेरी इजी टू लर्न। नाउ इन द टेक्सटाइल एंड द लेदर इंडस्ट्रीज, तो सीरियम सॉल्ट्स का उपयोग टेक्सटाइल और टैनिंग इंडस्ट्रीज में भी होता है। कौन कौन से हमारे कंपाउंड्स यूज होते हैं, जनरली सीरियम नाइट्रेट का यूज़ होता है जो एलिजराइन टाइप ऑफ डाइज होते हैं उसमें एक मॉर्डेंट का काम करता है ये। इन द लेदर इंडस्ट्रीज में टैनिंग के लिए यूज होता है। देन क्लोराइड्स एंड एसिटेट्स ऑफ द लैंथेनाइड्स आर ऑल यूज्ड फॉर मेकिंग द वाटर प्रूफ एंड एसिड रेजिस्टेंस फैब्रिक्स। तो आपने देखा होगा जैसे कि हमारा जहाँ पे एसिड वगैरह का डाइल्यूशन होता है, एसिड प्लांट्स होते हैं, एसिड मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहाँ पे हमको स्पेशल टाइप ऑफ फैब्रिक का ज़रूरत पड़ता है। सो जनरली व्हाट वी कैन से दैट हम यहाँ पे क्लोराइड्स एंड एसिटेट्स ऑफ द लैंथेनाइड्स का उपयोग करते हैं वाटर प्रूफ एंड एसिड रेसिस्टेंट फैब्रिक्स को बनाने में। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस लाइक फेरी मैग्नेट्स, गार्नेट्स ऑफ आवर लैंथेनाइड ऑक्साइड्स with combination of iron oxides are used in the microwave devices. तो लैंथेनाइड्स का एप्लीकेशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, मीन्स माइक्रोवेव्स वगैरह में इनका उपयोग होता है। देन कैटालिटिक एप्लीकेशन, सो वी नो दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, सो दे आर यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन, then dehydrogenation, oxidation, and cerium phosphate finds a use as a catalyst in the petroleum cracking. So we know what is petroleum cracking when we are getting the different fractions, when we are doing the fractional distillation of our this one petrol. So next is our मेडिसिन्स एंड द एग्रीकल्चर। सो लैंथेनाइड्स का भी हम देख रहे हैं हर जगह उपयोगी होते हैं। सो एक आपने ये सुना हो नहीं सुना हो तो डाइमर्स आर द सैलिसिलेट्स ऑफ द प्रेसिडोमियम एंड द नियोडीमियम विच आर यूज्ड एज ए जर्मिसाइड। जर्मिसाइड्स मीन्स जो जर्म को किल करने में यूज होते हैं। जनरली ये मेडिसिन्स हैं। देन सीरियम सॉल्ट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द वॉमिटिंग एंड द सी सिकनेस। तो सीरियम सॉल्ट्स का भी उपयोग होता है वॉमिटिंग कंट्रोल एंड सी सिकनेस के लिए। सॉल्ट्स ऑफ our erbium and our cerium increases the RBCs and the hemoglobin of the blood. तो मीन्स मेडिसिन में तीन इंपॉर्टेंट है, ये जर्मिसाइड्स के रूप में यूज होते हैं वॉमिटिंग एंड द सी सिकनेसेस में, एंड आरबीसीज और हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर में लैंथेनाइड कंपाउंड्स का यूज होता है एज ए इंसेक्टिसाइड्स एंड एज ए fungicides in the and also some trace elements in the fertilizers are also used. So next in the lamps, so salt of cerium, europium, lanthanum, samarium are used as activators for the luminophores, making the gas mantles, coating of luminescent lamps, and for painting for the stress of the सीन्स ऑफ द कैथोड रे ट्यूब्स। तो जनरली जो आप लैब में देखते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स हम यूज़ करते हैं और उनमें डिफरेंट सोर्सेज होता है, तो इन्हीं के सॉल्ट्स को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो द लास्ट एप्लीकेशंस लाइक एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर डूइंग द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वहाँ पर हम सीरिक अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
And the radioisotopes of the lanthanides like lanthanum 140, cerium 142, Irvium 152 and terbium 160, all these are used as the co-precipitation and the chromatographic separation etc. So just you have to learn the isotopes, means मास आपको learn करना पड़ेगा. And these are the important non-nuclear application. The nuclear applications, like many of the lanthanide elements are used in the nuclear industries, mainly in the nuclear fuels, shielding, जो आपका reactor है उसका shielding के लिए, fluxing devices. Promethium 147 is used as the production of the atomic batteries. So these are the important points which I covered. So you can take the screenshot and you can make your notes. And students, this question can be lengthy for the 5 marks, but if it comes in the 20 marks, because some universities ask this in the 20 marks, तो आप इसको, मैंने ये जो notes बनाए हैं 20 marks के हिसाब से बनाए हैं. So I hope you can understand. Just you can see that if it is asked in the 5 marks, so just you can write this much points will be sufficient, and you can also take some points from my notes. Next you can just for the 5 marks you can also take the screenshot of this answer. So this is easy for you. Thanks for watching the video. Do subscribe the channel and share with your friends.